Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you people in order to bring out the next lecture in our economic series. That is a wonderful initiative of Udan IAS. In the last of the classes, we majorly had discussed a few of the things regarding your monetary policy committee and all those kind of stuffs we had discussed. Okay, as well as we had a certain kind of peep insight into what we will be discussing in the subsequent of the lectures. That is, for example, we had a discussion on that we will be discussing about repo rate, we will be discussing regarding reverse repo rate and all those kind of stuffs. Okay, acha. In this class what we will be doing, we will be going deep inside into our banking concepts. These of the concepts are very important for examination point of view, as well as in order to become a good citizen and hence able to analyze that what is RBI doing in order to control the money market, and all those kind of stuff we will be having a kind of discussion on. Now see, to be more specific, what we will be doing in this of the lecture is that we will be discussing regarding instruments of credit control. क्या करूंगा मैं बात instruments of credit control के ऊपर we will be having a certain kind of discussion. अच्छा, if I'm talking about instruments of credit control, so I will be saying that I will be dividing my, अच्छा देखो credit control क्या होता है, लोन. क्रेडिट का मतलब क्या है, लोन. ठीक है. So what is this credit control all about? That is how we are able to regulate loan in the economy. What are the instruments that are available, है ना? On that we will be having a certain kind of discussion. Now see, if I'm telling you in order to understand these kind of concept, if I'm telling you, okay, so what I will be doing, I will be dividing my discussion into two of the parts. That is, number first is quantitative instruments. Okay, that is, instruments of credit control consist of two of the parts. Number first is your quantitative instruments, and number second is your qualitative instruments. That is, quantitative instruments as well as qualitative instruments. ठीक है, अच्छा. सो अगर मैं बात करूंगा, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द क्वांटिटी. क्या? समथिंग रिलेटेड टू द क्वांटिटी विच यू कैन काउंट ऑन नंबर्स. दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द क्वांटिटी विच यू कैन काउंट ऑन नंबर्स. Those of the things I will be calling as quantitative methods of quantitative instruments. ठीक, those of the things that cannot be counted on numbers. ठीक है, दोज ऑफ द थिंग्स जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता उसको मैं बोलूंगा दीज आर नॉट क्वांटिटेटिव, एंड रादर आई विल बी सेइंग दैट दीज आर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. क्या? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, है ना? सो दीज टू ऑफ द थिंग्स यू हैव टू के अंडरस्टैंड in bit of detail. Now see, what I will be doing, I will today cannot be discussing regarding qualitative instruments, and rather our discussion will be majorly focusing on what? We will be focusing on your we will be focusing on quantitative instruments of credit control. Qualitative के ऊपर आज बात नहीं करेंगे, ठीक है? Our subsequent of the lectures में we will be having a discussion on quantitative instruments of credit control. अच्छा, to show you that is what could be the what could be different of the methods of क्या quantitative instruments of credit control. ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, we will be having a discussion on it. That it could be your bank rate. ठीक है, it could be your bank rate. ठीक है, it could be your liquidity adjustment facility. ठीक है, in normal of the terms it is called as your LAF facility. क्या? LAF, liquidity adjustment facility. ठीक, देन वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, एक पूरा लेक्चर हम सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे ही लेंगे. व्हाट इज दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑल अबाउट? ठीक है, व्हाट इज दिस रिजर्व्स रिक्वायरमेंट, व्हाट इज सीआरआर, ये बहुत ज्यादा न्यूज में चलता है. सीआरआर, व्हाट इज एसएलआर. ठीक है, इसको सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो. सीआरआर इज योर कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है, एसएलआर इज योर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो. एसएलआर, है ना? इस पे वी विल बी हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ डिस्कशन. ठीक, सो क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या हो सकते हैं? इट कुड बी योर बैंक रेट, it could be your liquidity adjustment facility, it could be your open market operation, it could be reserves requirements. What are these that we have to discuss. ठीक, अच्छा, तो आज क्या करेंगे, आज स्टार्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद योर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. वी विल बी स्टार्टिंग विद लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. अच्छा देखो, if I'm talking about your liquidity adjustment facility, if I'm talking about liquidity, ऐसे देखो, यहां पे देखना, if I'm talking about
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. इसमें if I'm talking about, there are three of the words that are out there. Number first is your liquidity, number second is adjustment, number third is your facility. Whenever you are getting stuck in any kind of क्या concept, you just क्या break it word by word. ठीक है. Liquidity. Liquidity in turn means how much cash is out there in the economy. ठीक है. ठीक. लिक्विडिटी का मतलब क्या है आपका इकोनॉमी में, वेदर देयर इज लिक्विडिटी और नॉट, दैट इज आई कैन से दैट वेदर देयर इज क्या कैश, देयर इज, इफ देयर इज अ कैश अवेलेबल इन द इकोनॉमी. ठीक. हायर द कैश इन इकोनॉमी, हायर द कैश इन इकोनॉमी, आई एम सेइंग हायर लिक्विडिटी, हायर लिक्विडिटी. ठीक. लोअर द कैश इन इकोनॉमी, I will be saying lower liquidity. I will be saying lower liquidity. ठीक. So in turn, through liquidity adjustment facility, what you are doing, you are trying to understand that is how we can circulate, how we can control the cash that is out there in economy. ठीक. अच्छा, कैश हम क्यों कंट्रोल करेंगे इकोनॉमी में? Why we will be controlling? Because cash in turn is responsible for your inflation. क्या? cash in turn will be responsible for inflation, will be responsible for inflation. Inflation क्या है? Inflation, if I am saying, is general rise in price of goods, is general rise in price of goods, price of goods. ठीक. जैसे आई विल बी सेइंग, अगर मार्केट में ज्यादा कैश है, इफ इकोनॉमी हैज मोर कैश, ठीक, एंड इफ इकोनॉमी हैज मोर कैश, दैट मीन्स दैट पीपल हैव मोर कैश. कैन आई से दैट? इफ इकोनॉमी हैज मोर कैश, सो आई कैन से दैट पीपल हैज मोर कैश, पीपल हैव मोर कैश, पीपल हैव मोर कैश. दैट मीन्स पीपल हैव मोर कैश. ठीक. अच्छा, पीपल हैव मोर कैश मतलब, अच्छा, अब लोगों के पास ज्यादा पैसा है. ठीक. सो व्हाट विल बी द केस? फॉर एग्जांपल राइट नाउ क्या देयर इज अ 10 रुपीज का डेयरी मिल्क का चॉकलेट, मान लो. ठीक है, देयर इज 10 रुपीज का डेयरी मिल्क का चॉकलेट. अर्लियर ओनली वन पर्सन वाज हैविंग द कैपेसिटी टू बाय दिस थिंग, दैट इज 10 डेयरी मिल्क का, 10 रुपए का डेयरी मिल्क का चॉकलेट. ठीक. सो प्राइस वाज ओके. Now because lot of people have this much amount of cash, तो अब और लोग आगे in order to buy this dairy milk that I am also having same amount of money. ठीक है. So what the shopkeeper will be doing in order to reduce the crowd, वो क्या करेगा? अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए क्या करेगा? 10 रुपए में नहीं सर, अब मैं I will be selling this entire other thing for 12 rupees now. ठीक. अच्छा, तो उससे क्या होगा? ये दो कट गए, ये दो कट गए, बिकॉज दे वर हैविंग ओनली 10 रुपीज. फॉर एग्जाम्पल अब क्या? सिर्फ दो लोग बचे. ठीक. दैट इज who are having the required amount of cash in order to buy this dairy milk chocolate. ठीक है. So what is this? I am saying higher the cash in economy. ठीक. That means higher is the money with the people, and since higher is the money with the people, so they can have more purchasing capacity. ज्यादा लोग जब सेम क्वांटिटी को डिमांड करेंगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा. the price of that commodity will increase, and that is why what we are doing, we need to control the cash in economy in order to control the inflation. ठीक है. So we need to control cash in economy, in order to control what? In order to control inflation. And that is why this entire of your liquidity adjustment facility का thing is coming into the picture. ठीक. ठीक. अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं रिगार्डिंग दिस क्या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कंसेप्ट पे, मैं कल आऊंगा. ठीक. आज देखो, आज आई होप यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दैट कुड बी आउट देयर. ठीक. अच्छा, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने सबसे पहला व्हाट आई हैड टेकन योर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. ठीक है. अच्छा, लिक्विडिटी क्या है? व्हाई वी नीड टू कंट्रोल लिक्विडिटी? बिकॉज वी नीड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. हायर द कैश इन इकोनॉमी मीन्स हायर द कैश विद पीपल. दैट मीन्स मोर पीपल कैन हैव
सेम कमोडिटी, तो इसकी वजह से शॉपकीपर क्या करेगा, प्राइस रेज कर देगा, एंड दैट इज व्हाई मोर कैश इन इकोनॉमी लीड्स टू मोर इन्फ्लेशन, दैट इज व्हाई वी टेंड टू कंट्रोल द कैश इन इकोनॉमी। हमें क्या कंट्रोल करना है, कैश इन इकोनॉमी। नाउ सी, there could be three kinds of parameters through which we can control this liquidity adjustment facility. We can do that, ठीक है, we can either do through repo rate, we can either do it through reverse repo rate, or we can do it through marginal standing facility, marginal standing facility। अब एक चीज देखना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में डिटेल में कल एक्सप्लेन करूंगा, बट एक चीज देखो, रेपो वर्ड हैड बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, ठीक है, रेपो मींस व्हाट, क्या, रीपर्चेज, ठीक, obligation, repurchase obligation, and that is how your word is coming out to be repurchase obligation से क्या बन गया, रेपो रेट। ठीक, किस चीज का रीपर्चेज करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। किसका रीपर्चेज आपको करना होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा, वॉट आर दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक बार ये भी क्या समझने की कोशिश कर लो। देखो, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग गवर्नमेंट नीड्स मनी, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, गवर्नमेंट नीड्स, दैट इज गवर्नमेंट नीड्स मनी, गवर्नमेंट नीड्स मनी, ठीक है, ठीक। Now what the government will be doing, ठीक है, they will be doing what, they will be क्या, saying to the masses, ठीक है, कि भैया what you do, ठीक है, यहां पे कौन है, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स आर आउट देयर, ठीक है, what they will be doing, वो बोलेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या बोलेंगी कि भैया मुझे पैसा चाहिए, ठीक, मुझे पैसा चाहिए, ठीक, मुझे पैसा किस लिए चाहिए। अच्छा देखो, मान लो देयर इज एन इंडिविजुअल ए एंड देयर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, बैंक विल बी लेंडिंग आउट टू द इंडिविजुअल सेम अमाउंट ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल एट 15%, मान लो 15% इंटरेस्ट पे, ठीक, बट गवर्नमेंट को फॉर सेम अमाउंट ऑफ मनी दे माइट बी चार्जिंग व्हाट, अराउंड, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 6% इंटरेस्ट पे, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज सरकार के पास क्या है, एक उनकी वो रेपो, एक आई विल बी सेइंग एक अथॉरिटी है कि हाँ भैया इनके पास मेरा पैसा सेफ है। आप किसी के पास भी तो जाके पैसा नहीं रखते ना, यू आर ओनली क्या, कीपिंग मनी ओनली विद दैट ऑफ द पर्सन whom you trust more, ठीक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन डिफॉल्टिंग ऑन द लोन इज वेरी हाई, ठीक, बट द प्रोबेबिलिटी दैट गवर्नमेंट विल डिफॉल्ट ऑन द लोन इज वेरी लेस, और जितना ज्यादा आपका रिस्क होता है उतना ज्यादा रिटर्न होता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, एंड दैट इज वाई क्या इंडिविजुअल्स को क्या हायर अमाउंट पे मिलता है, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज सच आर क्या अवेलेबल एट अ रिलेटिवली चीपर प्राइस, ठीक। सरकार बोलेगी आई नीड मनी, ठीक, सो व्हाट दे विल बी डूइंग, दैट बैंक्स विल बी क्या थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक, दे विल बी गिविंग आउट द मनी, and in return, ठीक, government will be giving them a certain kind of certificate that I am liable to pay you this much amount of money in future course, ठीक। इस टाइप के ट्रांजैक्शन को मैं बोलता हूं that this kind of transaction is your government securities transaction. This kind of transaction if I'm talking about is क्या constituting what, that is government securities, ठीक। अच्छा, एवरी बैंक, अच्छा यूजुअली क्या होता है कि वी आर ट्राइंग टू लिमिट दैट इज, अच्छा देखो कई बार ऐसा होगा क्या कि हो सकता है बैंक इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिस्क, वो लोगों को पैसा ही ना दे, एंड इट इज का इन्वेस्टिंग ऑल इट्स मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिकॉज यहां से दे आर श्योर दैट दे विल बी गेटिंग मनी, बट दिस इज डिफीटिंग द पर्पस ऑफ द बैंक इज नॉट फॉर क्या गिविंग मनी टू गवर्नमेंट, एंड रादर इट इज फॉर गिविंग मनी टू द पब्लिक, ठीक। So rather what we try to maintain an optimum level in which a particular bank should be maintaining its government securities, ठीक। उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर, जिसको मैं बोलता हूं हिंदी में, आई एम क्या कीपिंग दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू गेट मनी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है दैट गवर्नमेंट विल बी पेइंग मी मनी,
ठीक, मुझे ये सरकार पैसा देगी ओवर द फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम। ठीक, मुझे पता आई विल बी गेटिंग मनी आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी कीपिंग दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी। ठीक, उसको क्या एक तरह से मैं क्या बोल दूंगा कि भैया अच्छा, ऐसा जैसे मुझे पैसा पे करना है किसे, मान लो क्या ये बैंक है ए, ये है बैंक बी। ठीक, मान लो फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल केस। ठीक, बैंक ए को बैंक बी को पैसा पे करना है, बट इट इज नॉट हैविंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी। बैंक ए हैज टू पे बैंक बी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी विच इट इज नॉट हैविंग। But I know that कि I have government securities and government of India will be giving me certain kind of money through what? Because I have government securities। ठीक है, तो फ्यूचर डेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी पेइंग मी सर्टेन काइंड ऑफ मनी। ठीक, now what I will be doing, I will be giving this entire kind of क्या money in the form of government security to whom? To B। मैं क्या बोलूंगा कि जो पैसा मुझे सरकार से मिलना था, बिकॉज आई वॉज हैविंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नाउ बी यू टेक इट। ठीक, और मेरा पैसा क्या माफ करो एक तरह से। ठीक, सो वट एवर द अमाउंट दैट बी हैज टू गेट, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी पेइंग इट टू whom? To B, बिकॉज बी इज नाउ हैविंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक, तो सर्टिफिकेट ही तो है वो। ठीक, अच्छा, तो मैं क्या करता हूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर बैंक्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कीपिंग इट एज मॉर्टगेज इन ऑर्डर टू गेट मोर मनी फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम आरबीआई। एंड this kind of transaction that is taking place is called as your repo rate and reverse repo rate का transaction। क्या है ये डिटेल में? अभी मैंने आपको एक ब्रॉड पिक्चर बताई दैट व्हाट इज दिस रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, हाउ वी आर डूइंग। बैंक्स आर कीपिंग देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज मॉर्टगेज, एज गिरवी इन ऑर्डर टू गेट मनी फ्रॉम आरबीआई। ठीक, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन एंड रिवर्स रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, इसके ऊपर डिस्कशन डिटेल में करेंगे, बट आई गेस यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट ब्रॉडर आइडिया इज ऑल अबाउट। ठीक, आज की क्लास के लिए इतना ही। Rest will be doing in the next of the class, that is we will be starting with our repurchase obligation and reverse repurchase obligation in the next of the class। ठीक, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, कल की क्लास में मुझे ये भी बताना है, दैट इज बेसिस पॉइंट एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, व्हाट इज दिस, कल की क्लास से रिलेटेड है क्या, 2017 का क्वेश्चन है ये। इट इज सेइंग दैट इज एमपीसी के ऊपर क्वेश्चन है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट ऑफ द क्लास, 2017 का क्वेश्चन। इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक, इट इज अ 12 मेंबर बॉडी। नो, इट इज अ 6 मेंबर बॉडी, कल मैंने आपको बताया था। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नो, इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैन ऑफ आरबीआई गवर्नर। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक, सो ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज दिस इज द आंसर। 2 इज इनकरेक्ट, 3 इज इनटू 3। ठीक, इसका आंसर क्या है? ए। ठीक, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास। ठीक, और जैसे हमेशा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का मेंशन करता हूँ, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इट, दैट इज SAMI2908 इज माय टेलीग्राम ग्रुप। Every of my student, nearly every of my student is part of it, so you can also join at the rate SAMI2908 is my telegram group। ठीक, so that's it। rest will be doing in the next of the class। और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए। Why? Because UPSC is not a game of IQ, it is a game of EQ। चलो बाय बाय बच्चा, see you in the next class।